Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. Today I am going to tell you a few important points related to reading skills because we have to talk about all the core skills. So today we'll be covering the receptive skills. In the beginning, I told you the difference between receptive and productive skills. Receptive skills basically means to receive. Receptive is from the word receive. जब आप रिसीव करते हैं कोई इंफॉर्मेशन तो इसमें रीडिंग स्किल्स आ जाते हैं और इसमें listening skills आ जाते हैं. So today we'll be focusing on reading skills, that how you can improve your reading skills and what are the different, what happens when you read. Read करने से आपको क्या फायदा होगा, आप क्या learn कर सकते हैं, and what are the secrets, how we can read well and all that. अच्छा जी, अगर आपने अपनी vocabulary को build करना है, there are different ways for that. So off and on मैं आपको sessions में बता चुकी हूँ कि अगर आपने अपनी vocabulary increase करनी है तो words alone are not enough. You find different words in your surrounding, or you read few words and then you note them down. That is not enough. You have to pick words in chunks. Chunks का मतलब है कि कुछ expressions ले लें, कोई phrases ले लें, short sentences जिसमें कोई word use हो रहा है, और फिर उसको understand करके उसको practically use करना start करें. Learn words in chunks. Chunks का मतलब होता है small pieces. So you don't have to pick just words, you have to pick phrases or expressions or sentence form में words को लें, ताकि आपको एक पूरे context के accordingly जब word समझ आता है तो फिर आपको ज़्यादा easily आप उसको practice करके जल्दी mind में retain कर सकते हैं और वो easily आपकी memory में pin हो जाएगा, and then you can start using it in routine. Words जो है वो क्या करते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो राइटर के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. एटीट्यूड में आ जाते हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस आ जाते हैं. सो वर्ड्स एक्सप्रेस टोन, द राइटर्स एटीट्यूड. ठीक है, अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछें, एंड डू यू थिंक यू शुड रीड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, yes or no? But the first question is, do you even read books? Do you read content on the internet, or do you, because we now the world is in the palm of our hands. दुनिया जो है वो तो आपके हाथ में है. कैसे? Mobiles, gadgets. Just click a button and everything opens in front of you. Just click a button and you can open anything that you feel like watching, feel like reading, feel like listening to. So everything is basically in the palm of your hand. All you need to do is that you have to click that button. अब तो हम बटन क्लिक करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया. We are so lazy people. Yes, we are. And it is very hard for us कि हम research की जो ability है, जो search करने का एक skill है, या search करना itself is not something that is a habit. हमारे अंदर ये चीज बिल्कुल भी exist नहीं करती. So the more you read, the more you will, improve your vocabulary. This is one secret, and this is one practical step in order to enhance your vocabulary and in order to enhance your structures as a result. ये practical tip है, और यही tip जो है, मैं अगर ये tip बोलूंगी तो आप कहेंगे ये तो हमें already पता है. और वो टिप है read more. This is the most practical and the major thing that you have to do if you want to improve your language. और आपने क्या करना है, आप read करेंगे तो read करने से ही आपकी reading improve होगी. Improve reading by reading. The more you do, the better you get. जितना ज़्यादा आप read करेंगे उतने ज़्यादा आपके expressions जो हैं वो आपको wide expressions मिलेंगे, vocabulary आपकी increase होगी, structures आपको मिलेंगे, वो structures basically आपकी vocabulary बनेगी. So what you have to do is that on daily basis you have to set time. Now this is your responsibility practically, that if you really want to improve your language and if you really want to be a good reader, you have to give time to it. उसके लिए आप daily कोई भी एक time allocate कर लें, maybe 4 p.m. in the afternoon or 5 p.m. or early in the morning when you get up and you have time before you go to your office or to your university or college.
give 10 to 15 minutes or even 5 minutes to reading. And for that, what you have to do is, उसको अगर ज़्यादा आप थोड़ा उसको boring उसमें से element subtract करना चाहते हैं, so you can go and sit in your lawn, or you can sit on the rooftop with a cup of tea, or you can sit in your room. in हर किसी का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है जो कि उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होती है, कंफर्ट जोन होती है वो. So either it is the corner of your own room or somewhere in the greenery, in a park. You can go with a book, or you can go with your mobile. Internet is available, so you can just sit somewhere in a comfortable place, and you can set time on daily basis कि इस time पे ये सिर्फ मेरा reading का time है. And don't read with the fact कि ओहो मैंने तो कुछ याद करना है, या मैंने सीखना है, या मैंने language learn करनी है. Just relax and then read. ये एक रूल है कि अगर आप 21 डेज जो हैं वो एक किसी भी अपनी रूटीन में किसी भी एक पैटर्न को देते हैं, तो आपकी वो आदत बन जाती है. So 21 days is a set pattern that you can practice reading to make it your routine. Initially difficult होगा, initially especially सोच के जो आपको बैठना होगा, prepare करना होगा कि अच्छा मैं अपने आप को prepare करूं. Then gradually your mind and body will get tuned to this practice. और फिर आपकी रीडिंग का एक सेट पैटर्न बन जाएगा. क्रिएट अ रिचुअल. रिचुअल होता है कि कोई जिस तरह हम हमारे डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, और आप उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, या वो एक कुछ स्पेशल डेज होते हैं जिनमें आपने कोई खास काम करना होता है और आप उसको मिस नहीं करते. तो इसको भी एज अ रिचुअल लें, as you have as a celebration, as a special festivity that you have to do it and you cannot avoid. This is something that is important. अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट शुड आई रीड. रीडिंग का तो आपको कह रहे हैं कि आप रीड करें, लेकिन आपको रीड क्या करना है? ऐसी क्या चीज है जो कि आप रीड कर सकते हैं? चूज केयरफुली. रीड तो आप कुछ भी कर सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग दैट यू फील लाइक रीडिंग, बट you have to read what interests you. You have to pick the content that you like, that you enjoy. उसमें आपके कॉमिक्स हो जाते हैं, थ्रिलर्स हो सकते हैं, इलस्ट्रेशन बुक्स हो सकती हैं. इलस्ट्रेशन बुक्स होती हैं जिसमें आपके लिए रिटन कंटेंट के साथ पिक्चर्स होते हैं, इमेजरी यूज की जाती है, so that makes it more colorful and attractive. Now it depends on you. It can be any age, and कॉमिक्स जो हैं वो आप यंग एज हो, मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो, किसी भी एज में आप पढ़ सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट रीडिंग. इफ कॉमिक्स इंटरेस्ट यू, इफ इलस्ट्रेशन बुक्स इंटरेस्ट यू, अगर आपको कोई नॉवल अच्छा लगता है, नॉवल रीडिंग की आदत है, कोई न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट है, आप वो टॉपिक या वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जो कि आपको, जिसको आप चूज करके यू फील हैप्पी एंड यू आर रिलैक्स्ड एंड यू थिंक दैट यस दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय. सो ये कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट रीड करेंगे तो सिर्फ उसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. नो, दिस इज नॉट द केस. कि कोई एकेडमिक बुक्स होनी चाहिए जिससे आपका खास नॉलेज इंक्रीज होगा, और उसके अलावा तो किसी से नहीं हो सकता. सो दिस इज अ बिग नो. यू कैन पिक एनीथिंग ऑफ योर ओन चॉइस, any topic, any book, any novel, any magazine that you enjoy, and just go for it. What you read matters. अब जो कंटेंट आप रीड करते हैं उसका आपकी ऑफ कोर्स इन रिटर्न आपकी लैंग्वेज के ऊपर इफेक्ट आता है. जो कुछ आप रीड करेंगे वो आपकी लैंग्वेज पे उसका इम्पैक्ट आएगा, उसके ही अकॉर्डिंगली आपकी जो लैंग्वेज है वो इंक्रीज होगी. If you read good content, you will end up having good language. If you read ordinary content, it will depend and it will, affect your language accordingly. फन हो, एंटरटेनिंग हो, एंगेजिंग कंटेंट हो जिसमें आप एब्जॉर्ब हो जाएं. बी ट्रू टू योर सेल्फ. अब आप ऐसा कंटेंट चूज करें. अब मैं आपको आज कह दूं कि आपने जो है एक नॉवल है, एक लिटरेचर का पीस है, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन. ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें बहुत फैंसी हाई स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं, और इसमें वोकैबुलरी भी बहुत फैंसी है. इसकी जो थीम है वो है इंटरेस्टिंग है. इट इज अबाउट फैमिली मैरिटल लाइफ के बारे में, बट the structures and the language is quite complicated. Compound and complex structures use होते हैं. So for a beginner, this piece of literature is not recommended.
मैं आपको ये कहूँ कि आज जो है आपने ये नॉवल पढ़ना शुरू करना है और आपके पास 3 to 4 डेज हैं, इसको रीड करें और इसकी समरी दें, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। अगर मैंने लैंग्वेज लर्न करनी और आप वाकई अगर उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप यकीनन परेशान हो जाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज लर्न करने के लिए यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट, यू डोंट हैव टू मेक योर लाइफ अ हेल, यू डोंट हैव टू एंड अप मिजरेबल कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो ये पढ़ना है और मैंने अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा जो आप पढ़ रहे हैं। इसलिए जब आप वो कंटेंट पढ़ेंगे जिसमें से आपको समझ कुछ नहीं आएगा, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। So pick simple content, pick the content that is according to your level, according to the level of your language, which is a practically right thing to do. Pick the content that is easy to understand, and pick the content that you enjoy, that you like. मुझे नेचर में इंटरेस्ट है तो मैं नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पढ़ूंगी। मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ूंगी जिसमें मुझे एक पिक्चरस्क और इमेजिनेटिव कंटेंट मिलता है, एंड आई एंजॉय रीडिंग दैट, आई लव knowing about nature and all that. So of course मैं वही content पढ़ूंगी, and this means I am being true to myself. Be true to yourself. Pick the content that you really like and you understand. Novel, so बहुत ज्यादा सारे पेजेस हैं, पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस हैं, बट क्योंकि हमें कहा गया कि हमने पढ़ना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो इस नॉवल को पढ़ना है चाहे समझ कुछ भी ना आए। No, just don't do that. Read magazines, articles, blogs, thrillers, comics, books, anything on the internet that you enjoy. अब आप अपनी रीडिंग को इन्हांस करने के लिए ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बुक आपने रीड की है, जब आप उसको 3 times रीड करेंगे एक ही बुक को, तो हर दफा आपको उसमें डिफरेंट मीनिंग्स की लेयर्स मिलेंगी। मैंने फर्स्ट टाइम एक बुक रीड की, मुझे उसमें एक एंगल से या जनरली कुछ मीनिंग समझ आए, मैंने उसको दोबारा रीड किया तो कुछ ऐसे पॉइंट समझ आए जो कि मुझे फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ आए थे। कुछ मैंने एक बुक रीड की जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम में बहुत से ऐसे वर्ड्स मिले जिनके मुझे मीनिंग नहीं पता थे, उनमें से कुछ मुझे समझ आ गए, मैंने कुछ को डिक्शनरी में ढूंढ लिया, और कुछ को मैंने उस बुक की स्टोरी की जो कॉन्टेक्स्ट था, जो एक पैराग्राफ में एक वर्ड डिफिकल्ट आया, मैंने उसको समझना था तो मैंने उसके पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उस वर्ड को समझने की कोशिश की, कुछ समझ आ गए कुछ नहीं आए। Then I thought that why shouldn't I read this book again? So because I like the book and I really enjoy it और मुझे इसके मीनिंग जो है वो समझ आ रहे हैं, it is according to my level. So second reading में मैंने उसमें कुछ और मीनिंग्स अंडरस्टैंड किए, मैंने उसमें जो हार्ड वर्ड्स थे वो एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म हो गए, एंड मुझे उसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली या डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली समझ आ गया। क्योंकि मैंने उसको फर्स्ट रीड किया हुआ था तो एक प्रीवियस नॉलेज मेरे पास था, उस प्रीवियस नॉलेज ने उस बुक के बारे में उसने मुझे हेल्प आउट किया न्यू मीनिंग्स अंडरस्टैंड करने में, और जो गैप्स थे, जो कि लूप होल्स थे जो कि फिल नहीं थे फर्स्ट रीडिंग में, वो सेकंड रीडिंग में मुझे समझ आ गए। इस तरह आपको वोकैबुलरी और उनके डिफरेंट जो मीनिंग्स हैं वो आपके माइंड में सेटल हो जाते हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव योर लैंग्वेज, यू कैन रीड द बुक अगेन। अब एक बात जो मैंने अभी आपसे की है कि अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो ये होता है कि व्हेन आई एम रीडिंग अ नॉवल एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग अ लैंग्वेज एंड देयर आर मेनी वर्ड्स, समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता होता, लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते मैंने उस बुक को साइड पे नहीं रखना, और आई डोंट वांट टू ओपन द डिक्शनरी, और मीनिंग भी मुझे नहीं आता बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक द ब्रेक वो जो एक टेम्पो मेरा बना हुआ है रीड करने का, मैं बुक को साइड पे रख के डिक्शनरी नहीं ओपन करना चाहती। तो क्या दूसरा तरीका है मीनिंग को अंडरस्टैंड करने का, वो ये है कि आप उस जिस पैराग्राफ में आपको वो वर्ड मिला है या जिस पेज पे आपको वो वर्ड मिला है उस बुक में, आप उस पेज में जो मीनिंग राइटर बोल रहा है, जिस मीनिंग में, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने वो वर्ड यूज किया है, उसके लिए पूरे पैराग्राफ या उस सेंटेंस को 3 to 4 times पढ़ें और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उस वर्ड को अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको मीनिंग समझ आ जाता है। I think 75% of the time you're able to understand the meaning of the word with the help of context if you don't open the dictionary. Guess the meaning of difficult words according to the context, right?
So this is what you can do as well, and it will help you in improving your language. और आपका brain जो है वो active हो जाता है, वो सोचता है कि किन different angles के through आप language को understand कर सकते हैं, dictionary के through, context के through, एक ही book को 2 या 3 times read करके different words आपकी vocabulary increase हो जाती है, or you can pick topics or content that you are interested in. So these are the different ways how you can improve your language. अगर बहुत से unknown words आ जाएं तो फिर हम क्या करें? Simply एक ही rule है. You're reading the book. First of all, always pick the book that you are interested in. That is your level. अभी मैंने आपको एक नॉवल की एग्जांपल दी है. प्लीज न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ नहीं जाएं. आप चाह रहे हैं कि मुझे बहुत फैंसी वोकैबुलरी आए और मैं तो हाई फाई वर्ड्स जो हैं वो यूज करूं और मैं किसी के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन लोगों पे डालूं दैट वाओ आई कैन यूज डिफिकल्ट वर्ड्स. तो I don't think this is a practically right thing to do, because practically the right thing is कि आप जब कुछ बोलें या कुछ लिखें तो वो आपके रीडर को समझ आ जाए या आपके लिसनर को समझ आ जाए. आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करें लेकिन समझ किसी को कुछ नहीं आ रही तो आपका पर्पस फेल हो जाएगा. So pick the book that is according to the level of your English and according to the level of your understanding. Practically this is the only rule. You don't have to feel bad about it, because आपने तो अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है जो आज बेसिक पे है तो कल इन रूल्स को फॉलो करते करते एडवांस लेवल पे चली जाएगी. Circle the few difficult words you find as you read and look back later. अगर बहुत से words difficult आ रहे हैं उनको आप circle करें, underline करें, and then of course अगर context के through समझ नहीं आ रहा so dictionary is the only magical book. Open your dictionary and find the meaning, and then start using those words, please. Read out loud. In order to improve your language, in order to enhance your reading skills, आप जो हैं different styles of learning जो हैं उनको collaborate कर सकते हैं, उनको merge कर सकते हैं, उनको एक साथ use कर सकते हैं. Read by listening and then say the words out loud. ये मैं आपको आपकी audios में कह रही हूँ और जो आपको मैं assignments देती हूँ उसमें मैं आपको कहती हूँ कि listen and then जो आपको मैं written audio note भेजती हूँ उसमें मैं आपको कहती हूँ कि listen and then read what is written और listen and speak. तो आपके 3 skills जो हैं वो practice होते हैं. Then I say listen and write it as well. So आपके 4 skills इस तरह practice होते हैं. जब आप listen करते हैं always read it loud. Why you have to read out loud? क्योंकि आप अपनी आवाज को जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे corrections की जरूरत है. Listen and compare. Listen, repeat, and compare. Read, listen, and speak. 3 skills are being used. So आपके skills जो हैं आपने सुना, फिर आपने उसको read किया, और read के साथ आपने फिर उसको speak किया. So you are basically combining different skills, and then later on you can write it as well. So the best point is कि आपके 4 skills एक ही assignment या एक ही activity में practice हो गए. आप leisure reading करते हैं, this is for the sake of fun, this is for the sake of relaxation, and if you want to learn a language, please do leisure reading. Read for the sake of enjoyment. आप जब unconsciously read करते हैं without thinking that you are learning, फिर आपका brain ज़्यादा active होता है और ज़्यादा चीज़ें pick करता है. आप देखें किसी comfortable environment में जब आप होते हैं तो आप उसमें ज़्यादा comfortable और relaxed feel करते हैं. अगर आप किसी ऐसे environment में that is giving you stress and that is giving you tension, तो आपका brain जो है वो process करना बंद कर देता है. So relax your brain and just read for the sake of reading and read for the sake of enjoyment. You can even test yourself. अगर आप pleasure reading नहीं करते तो आप अपनी language को comprehension के through भी understand कर सकते हैं. Comprehension के through language को learn कर सकते हैं. Comprehend का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, it means to understand. Open a book, read a paragraph, close the book, then write down the key points that you have picked from that content or that paragraph. This is called practicing comprehension skills. मैंने आपको एक reading passage दिया था कुछ दिन पहले about airport, जिसपे मुझे सिर्फ 2, I think hardly 2 or 3 assignments मिली हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, which means that probably you are not interested in improving your language. That is the comprehension exercise. और इसमें आपकी reading ability जो है वो ज़्यादा strong होती है. आपने book में से book or internet wherever you find any piece of writing,
read it 2 to 3 times, read it 10 times even if you want to. कोई ये नहीं कह रहा कि जस्ट एक बार रीड करें, उसको बार बार रीड कर लें जब तक आपको लगता है कि अच्छा आपको अब आइडिया हो गया है, देन पुट इट अवे. कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में ये भी कंपलसरी नहीं है कि अगर पैसेज में 10 पॉइंट्स नहीं है तो आपने वो 10 के 10 पॉइंट्स कॉम्प्रीहेंड करके राइट करना. राइट वट एवर यू अंडरस्टैंड. ग्रेजुअली आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे, फिर जो 10 पॉइंट्स आपने रीड किए होंगे वो ऑटोमेटिकली आप 10 पॉइंट्स राइट कर सकेंगे, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, वो प्रैक्टिस के साथ होगा. फिर आप जो हैं जो आपने कॉम्प्रीहेंड किया, आप उनमें जो वर्ड्स आपने सुने, जो रीड किए या सुने, उनको गेस करना शुरू करें उसमें मीनिंग्स, कि आप उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली क्या समझते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या होंगे. डिक्शनरी ओपन किए बगैर, ओपन योर ब्रेन, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली समझें, and then try to make new sentences on your own. Later on, you can open the dictionary, later on you can search the words. So this is how you can improve your language. I hope that this point has helped you. Acha ji, if you want to bring an end to the communication barrier, communication barrier जो है वो हर जगह exist करता है. अगर आपने, क्योंकि आपका लैंग्वेज का मेन पर्पस यही है कि आपने कम्युनिकेट करना है इन अ क्लियर एंड मीनिंगफुल वे. आपकी इस कम्युनिकेशन में बैरियर क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आइदर जो स्पीकर है वो अपने आप को अच्छे से क्लियरली ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है, या फिर स्पीकर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है जो कि लिसनर को समझ नहीं आ रही, या फिर जो लिसनर है वो समझ नहीं रहा कि स्पीकर क्या कह रहा है, या फिर लिसनर जो है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा कि आप क्या कह रहे हैं. ये बोथ साइड से होता है, ठीक है, द स्पीकर एंड द लिसनर, द राइटर एंड द रीडर. सो जब आप बोल रहे होते हैं, व्हेन यू आर स्पीकिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्पीक लाइक अ रोबोट. एक फ्लैट रोबोटिक स्टाइल आपका नहीं होना चाहिए, उसमें हाई एंड लो पिच होनी चाहिए. इंटोनेशन होती है जो कि राइज एंड फॉल होती है. आपने कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ आपने स्ट्रेस नहीं देना वर्ड्स पे, कहाँ आपने पॉज करना है, कैसे आपने एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे मूव करना है. ये आपकी हो गई वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत मेजर रीजन जो कि कम्युनिकेशन बैरियर बनता है वो तब होता है जब स्पीकर प्रिपेयर्ड नहीं होता. मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देने के लिए आ जाऊँ और कुछ भी प्रिपेयर ना करूँ और मैं कहूँ बस 30 मिनट्स ही तो हैं, वो जैसे बातें करके और जनरली डिस्कशन करके आपका हालचाल पूछ के मैं आई जस्ट ब्रिंग एन एंड टू दिस सेशन. व्हाट इज दिस? Because I don't even know what I have to speak, so I'm just passing the time and I'm just getting done with it. So this is going to be a really horrible thing and it is going to affect our communication, because हमारा communication का एक purpose है, हमने एक message convey करना in a meaningful and clear way. अगर मैं prepared नहीं होंगी तो उसका effect आएगा और communication जो है वो zero हो जाएगी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपने अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है. Non-verbal communication is your physical communication, your physical features, your visual aspects, your body language, the way you, आपकी communication में आपका eye contact बहुत मैटर करता है, आपके facial expressions बहुत मैटर करते हैं. मैं एक फनी बात कर रही हूँ लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, तो वो आपको फनी लगेगी या नहीं. मैं बहुत सीरियस बात करना चाह रही हूँ और मैं उसमें मजाक कर रही हूँ आपके साथ, तो यू विल से लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है. और मैं कुछ इमोशन फिल्ड बात कर रही हूँ लेकिन मेरे एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्लैट है, या फिर मैं आपसे बात आपसे कर रही हूँ लेकिन देख कहीं और रही हूँ. नो कम्युनिकेशन. सो द वे यू स्पीक, हाउ यू स्पीक, what you speak, when you speak, why you speak, सारे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, WH वर्ड्स इनको आप कहते हैं. जब आप कोई भी असाइनमेंट, चाहे वो आपकी रिटन है या स्पोकन है, अपने आप से WH वर्ड्स जो हैं उनका आंसर ले लें. What are you going to speak? How you are going to do it? When are you doing it? Where are you doing it? For whom are you doing it? Which detail you are going to add in it? Why, when, how, where, ये सब अपने आप से जब आप पूछ लेंगे तो आपको आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आंसर मिल जाएगा. That are you ready for this or you're not?
Please remember these rules to avoid communication error in writing and speaking. जो आपने कहना है वो आपको पता होना चाहिए. Say what you mean. आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए. Do you really believe in yourself what you're saying? Be clear, be to the point. वो तभी होगा जब आप pre-prepared होंगे. जब आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है तो तब आप automatically focused हो जाएंगे. अपनी communication को alive करने के लिए questions add करें अपनी discussion में. Ask your audience that whatever you're speaking about or whatever you're sharing, unse question kare so that you get an idea that the audience is getting your point. Communication should be two-way. Make your audience speak and participate. Ask questions to know your listener is interested and engaged. Listen or hear mein bahut difference hota hai. When you listen to somebody, you listen with full attention, you listen to understand. When you hear जो है वो passive होता है. When you hear something, when you're hearing something, when somebody says, तो फिर उसमें जो वो active नहीं होती. आपकी listening skill is active. Hear, सुनना, लेकिन वो passive होता है. उसमें आपकी concentration, उसमें understanding level नहीं आता है, ठीक है? So you have to be an active listener, and this means that you have to really listen in order to understand. तो फिर आपको सब कुछ समझ आता है. ये आपकी assignment है. You have to share 3 major points you've learned throughout this course. आपका जो है almost I think हमारे कितने days हो गए? 23 days, 24 days हो गए. So you have to share your views. You have to write a paragraph, and you can speak on it as well. That share 3 major points you've learned in this course. It can be positive, it can be negative. आपकी कोई complaints हैं, आप उसमें openly बात कर सकते हैं that this is what you have in your mind and this is what you're going to, this is what you think you've learned and this is what you think was not enough and you would like the changes in this way. So एक general ये question है, ये कोई आपका test नहीं है. Generally writing skills की practice के लिए ये मेरे mind में आया तो ये मैंने आपके साथ जो है यहाँ पे share कर दिया, ठीक है? So that is all for now. Thank you very much for joining the session. And it comes to an end over here. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we'll close the session now. Any question? Anything that is not clear? Okay, thank you very much and take care of yourself. I'm going to see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.